حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز علی یاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ 13 رجب یوم ولادت امیر المومنین حضرت علی، حیدرآباد میں ڈبل پورہ سے مولا علی پہاڑ تک صحرا مبارک کے ساتھ تاریخی جلوس، شہر میں روحانی ماحول۔ ریاست میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ماحول سازگار، 117 بلدیات کے لیے 11 جنوری کو یا اس کے بعد اعلامیہ کی اجرائی کا امکان۔ تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس کے ہال ٹکٹس والدین کے واٹس ایپ پر بھیجے جائیں۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کا فیصلہ، ڈاؤن لوڈ لنک کے ذریعے ہال ٹکٹ کی فراہمی۔ ماہ رمضان سے قبل بلدی برقی و آبرسانی مسائل پر MLC رحمت بیگ قادری کا کونسل میں مطالبہ۔ مساجد کے اطراف روزانہ صفائی، بجلی کٹوتی نہ کرنے، پانی و صفائی کی بلا رکاوٹ فراہمی پر زور۔ ہائیڈا نے گنڈی پیٹ کے قریب 12 ایکڑ سرکاری اراضی سے ناجائز قبضے برخاست کیے۔ اراضی کی قیمت 1200 کروڑ روپے ہونے کا امکان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ 13 رجب المرجب یوم ولادت امیر المومنین داماد رسول امام اول زوجائے بطول والد حسنین اسد اللہ غالب شیر خدا حیدر کرار مرتضی مولا علی ابو التراب باب العلم امام المتقین قائد عدل و انصاف شمشیر حق ذوالفقار کے حامل علم و حکمت کے سرچشمہ کعبے میں پیدا ہونے والی عظیم ہستی امیر المومنین حضرت علی ابن ابو طالب کے پرمسرت موقع پر پرانے شہر حیدرآباد میں شیعہ برادری نے نہایت عقیدت و جوش و خروش اور مذہبی احترام کے ساتھ تقاریب منعقد کی۔ ڈبل پورہ واقع علاوہ بی بی سے صحرا مبارک کے ساتھ عظیم الشان جلوس برآمد ہوا، جس کی قیادت AIMIM کے رکن قانون ساز کونسل ریاض الحسن المعروف گولڈی نے کی۔ جلوس بی بی کے علاوہ سے شروع ہو کر شیخ فیض کی کمان، اعتبار چوک، عالیجہ کوٹلہ، سردار محل، چار مینار، گلزار ہاؤس، پنجے شاہ، میرعالم منڈی، پرانی حویلی، دارالشفا اور چادر گھاٹ سے گزرتا ہوا مولا علی پہاڑ پر اختتام پذیر ہوا، جہاں راستے بھر میں عوام نے گلپوشی اور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے جلوس کا شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر حضرت علی ابن ابو طالب کی حیات طیبہ کے روشن پہلوؤں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، جو عدل و انصاف کی بے مثال علامت، شجاعت و تقویٰ کا پیکر اور علم و حکمت کا سرچشمہ تھے، جنہوں نے مساوات، حق گوئی اور انسانیت کی خدمت کا درس دے کر رہتی دنیا تک کے لیے ایک کامل نمونہ چھوڑا، اور یہی تعلیمات آج بھی معاشرے کے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہیں۔ تلنگانہ میں ایک بار پھر سے انتخابی ماحول دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ ریاست میں بلدیاتی انتخابات کے لیے تیاریاں زور پکڑ چکی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ریاست میں جملہ 113 بلدیات کے انتخابات کے لیے تیاری مکمل کر لی گئی ہیں۔ 11 جنوری کو یا پھر 20 جنوری تک ان انتخابات کے لیے انتخابی اعلامیہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ریاستی حکومت اور اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے اپنے طور پر انتخابی تیاریوں میں تیزی پیدا کر دی ہے اور قطعی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ تلنگانہ میں اپنی میعاد مکمل کر چکی ہے۔ جملہ 113 میونسپلٹیوں اور بلدیات کے انتخابات کروانے کو حکومت پہلے ہی ہری جھنڈی دکھا چکی ہے۔ انتخابات کسی نہ کسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوتے رہے ہیں، تاہم اب ان کے انتخابات کی تیاری مکمل کر لیے جانے کے اشارے مل رہے ہیں اور آئندہ چند دنوں میں اعلامیہ کی اجرائی بھی مکمل عمل میں آئے گی۔
इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्ट पर नजरसानी का अमल जारी है और 10 जनवरी को ख़तई वोटर लिस्ट की इजराई अमल में आएगी। इसके बाद इंतखाबी एलामिया जारी किया जाएगा। तेलंगाना में इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात के लिए तलबा के हॉल टिकट्स वालिदीन के व्हाट्सएप पर रवाना करने का फैसला किया गया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने यह फैसला किया है और कहा कि इसके नतीजे में तलबा की तालीमी हालत से वाकिफ होने का वालिदीन को मौकूफ मिलेगा। बोर्ड ने अहकाम जारी करते हुए कहा कि इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात 2026 के लिए तलबा व तालिबात के हॉल टिकट्स वालिदीन के रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर पर रवाना किए जाएंगे। इसका मकसद शफाफियत को बेहतर बनाना और शऊर बेदार करना है। बोर्ड ने बताया कि डाउनलोड किए जरिए वालिदीन को व्हाट्सएप पर ये हॉल टिकट्स रवाना किए जाएंगे। वालिदीन इस तरह से हॉल टिकट का जायजा लेने के अलावा तमाम तफसीलात का भी मुशाहिदा कर पाएंगे। अगर हॉल टिकट में कोई कमी या गलती रह जाए तो मुतालिका कॉलेज के प्रिंसिपल या फिर बोर्ड के जिले एजुकेशनल ऑफिसर से राब्ता करते हुए इसको दुरुस्त किया जा सकता है। कहा गया है कि हॉल टिकट्स के जरिए इंटर साल दुवम के तलबा के वालिदीन अपने बच्चों के साल अव्वल के मार्क्स और तालीमी हालत का भी मुशाहिदा कर पाएंगे। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत की जानिब से रियासत में गरीब खानदानों को गृह ज्योति स्कीम के तहत मुफ्त बरखी सरबराही का सिलसिला जारी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में बयान देते हुए कहा कि गृह ज्योति स्कीम के तहत रियासत के जुमला 5.2 मिलियन खानदानों को दूसरे यूनिट्स तक मुफ्त बरखी सरबराही की जा रही है। इसके नतीजे में गरीब और मिडिल क्लास खानदानों की मदद हो रही है, अवाम में तमानियत पाई जाती है। उन्होंने कहा कि सरकारी अंदाजों के मुताबिक इस स्कीम के नतीजे में इस्तेफादा करने वाले खानदानों को माहाना 1000 ता 1500 रुपये की बचत हो रही है। तेलंगाना हुकूमत की इस स्कीम के नतीजे में घरेलू बजट को मुस्तहकम करने में भी मदद मिली है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत गरीब आवाम की हर मुमकिन मदद करने और इन्हें राह पहुँचाने के मकसद से काम कर रही है और आवाम को इसकी समरात भी मिल रहे हैं। ఈ స్కీమ్ వల్ల రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి దాదాపు 1,15,00,000 కుటుంబాలు ఉంటే 52,49,777 కుటుంబాలు పెద్ద ఎత్తున ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందుతూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. అంటే మోర్ దెన్ 50% పైన ఈ రాష్ట్రంలో పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలు 200 యూనిట్లు వాడుతూ వారు ఈ రకంగా లబ్ధి పొందుతున్నటువంటి విధానం మనందరికీ చాలా సంతోషం. డెఫినెట్గా వారి ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి, మన మిగిలినటువంటి డబ్బులు ఆ కుటుంబ అవసరాలకు ఉపయోగపడతాయి. वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने ऐलान किया है कि मूसी नदी तरक्याती प्रोजेक्ट के अमली कामों का आगाज फरवरी या मार्च से किया जाएगा, जबकि इसकी तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट आइंदा 4 हफ्तों में मुकम्मल कर ली जाएगी। असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान उन्होंने बताया कि इस मंसूबे का मकसद मूसी नदी की सफाई, आलूदगी के खात्मे और अतराफी इलाकों की खूबसूरती के साथ हैदराबाद से नलगुंडा तक साफ पानी के बहाव को यकीनी बनाना और नलगुंडा को फ्लोराइड के मसले से निजात दिलाना है। इनके मुताबिक प्रोजेक्ट को 5 जोन में तकसीम किया गया है और पहले मरहले में उस्मान सागर व हिमायत सागर से बापू घाट तक 55 किलोमीटर के तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे, जिनमें से 21 किलोमीटर का काम पहले जोन के तहत मूसी नदी रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मुकम्मल करेगी। उन्होंने बताया कि एशियाई तरक्याती बैंक ने 4100 करोड़ रुपए के खर्च पर आमादगी जाहिर की है, जबकि मरकजी वजारत जल शक्ति से 3188 करोड़ रुपए की मंजूरी के लिए इब्तदाई रिपोर्ट रवाना की जा चुकी है। इसके अलावा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए पानी साफ किया जाएगा। गोदावरी से 5.2 टीएमसी पानी मूसी नदी में मुंतकिल किया जाएगा और बापू घाट को गांधी सरोवर के तौर पर तरक्की दी जाएगी, जहां महात्मा गांधी का खदावर मुजस्समा नस्ब होगा, जबकि पहले जोन के काम 2 बरस में मुकम्मल होने की तवक्को है। మూసీ నది తీర అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు కోసం సమగ్ర బృహత్ ప్రణాళికను రూపొందించడానికి మెసర్స్ మీన్హార్ట్ సింగపూర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారు లీడ్ మెంబర్గా, మెసర్స్ కుష్మన్ అండ్ వేక్ ఫీల్డ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, మెసర్స్
RIOS డిజైన్ స్టూడియో ప్రైవేట్ లిమిటెడ్తో కూడిన కన్సార్షియంని MRDCL నియుక్తం చేసింది. ఉస్మాన్ సాగర్ నుండి గౌరెల్లి వరకు, హిమాయత్ సాగర్ నుండి బాపుఘాట్ వరకు కన్సార్షియం అధ్యయనం కానీ ప్రణాళిక విశ్లేషణ డిజైన్ తయారు చేసి 18 నెలలలోపు ఈ క్రింది డిపిఆర్లను సమర్పిస్తుంది అధ్యక్ష. బ్లూ మాస్టర్ ప్లాన్, గ్రీన్ మాస్టర్ ప్లాన్, ల్యాండ్ యూజ్ మాస్టర్ ప్లాన్, మార్క్యూ ప్రాజెక్ట్స్, మౌలిక సదుపాయాల మాస్టర్ ప్లాన్, ఆర్థిక మాస్టర్ ప్లాన్, ఇవన్నిటి డిపిఆర్లు కూడా తయారీ పురోగతిలో ఉంది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, మూసీ ఈసా జలాల సంగమ ప్రదేశంలో మహాత్మా గాంధీ బోధనా తత్వాన్ని కొనసాగే విధంగా అంకితమైన ప్రపంచ స్థాయి అనుభవ కేంద్రాన్ని గాంధీ సరోవర్ని అభివృద్ధి చేయాలని ప్రతిపాదించడమైంది అధ్యక్ష. ప్రస్తుతం కన్సెప్చువల్ ప్లాన్లో ఉంది, అది కూడా పూర్తయింది అధ్యక్ష. దీనికోసం రక్షణ శాఖ భూములను సేకరించి అవసరం ఉంటుంది. భూముల బదిలీ కోసం ప్రతిపాదనలను రక్షణ శాఖ అధికారులకు సమర్పించడమైనది అధ్యక్ష. మూడోది అధ్యక్ష, ప్రాజెక్ట్కి 5 జోన్లు అనగా జోన్ 1, జోన్ 2, జోన్ 3, జోన్ 4, జోన్ 5గా విభజించడమైనది. మొదటి దశలోని 55 కిలోమీటర్లకు గాను 21 కిలోమీటర్ ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ నుండి బాపుఘాట్ వరకు గల జోన్ 1 రీచ్ని MRDCL చేపడుతుంది అధ్యక్ష. ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంక్ ADB 4100 కోట్ల దాదాపు 500 మిలియన్ల USD నిధులను ఇవ్వడానికి సూచనప్రాయంగా అంగీకరించింది. జోన్ 1 కోసం డిపిఆర్ తయారీ పురోగతిలో ఉంది. మూసీ నదిలోని శుద్ధి చేసిన నీటి విడుదల చేసే నిమిత్తం 3188 కోట్ల కోసం జాతీయ నది పరిరక్షణ ప్రణాళిక కింద నిధులను ఇవ్వడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖను తెలంగాణ ప్రభుత్వం కోరింది. ప్రాథమిక ప్రాజెక్టు నివేదిక PPRను సమర్పించడమైంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి అనుమతి అందిన మీదట డిపిఆర్ను తయారు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించడం జరుగుతుంది. रियासती वजीर इमारत व शवारे कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ तेलंगाना जागृति की सरबराह कविता के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और मुतालिबा किया कि वो पहले ये वाजे कर दें कि आया वो BRS में है या नहीं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कविता अपने बयानात के जरिए KCR से कुर्बत रखने वाले कायदीन को पार्टी से दूर करने की कोशिश कर रही हैं और इनके हालिया बयानात ही BRS के अंदरूनी अबतर सूरत हाल की अक्कासी करते हैं। वेंकट रेड्डी ने कहा कि अगरचे KCR को असेंबली में रोजाना हाजिरी का मशवरा देना दुरुस्त हो सकता है, लेकिन कविता के बयानात में तसाद पाया जाता है। उन्होंने पालामू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ कविता की जानिब से BRS पर लगाए गए इल्जामात की तरदीक का हवाला देते हुए कहा कि इन्हें KCR दौरे हुकूमत में नलगुंडा के साथ की गई नाइंसाफियों का भी तस्करा करना है। वजीर ने वाज़ेह किया कि अलहायदा तेलंगाना तहरीक के दौरान उन्होंने वजारत से इस्तीफा देकर तहरीक में हिस्सा लिया था और कविता की जानिब से वजारत से मुताल्लिक़ दिया गया बयान बेबुनियाद है। आने वाले माह रमज़ान के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से बल्दी बरखी और आबरसानी के मसाइल पर तवज्जो दिलाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने क़ानूनसाज़ कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग क़ादरी ने तेलंगाना कौंसल में अहम मसला उठाया। उन्होंने मुतालिबा किया कि माह रमज़ान मुबारक के दौरान GHMC की जानिब से मसाजिद के अतराफ रोज़ाना 2 मरतबा कचरा उठाया जाए। इस मकसद के लिए इजाफी टिप्पर गाड़ियाँ फराहम की जाएंगी और इस साल भी गुज़िश्ता बरसों से बेहतर इंतज़ामात यकीनी बनाए जाएंगे। MLC रहमत बेग क़ादरी ने हुकूमत पर जोर दिया कि इफ्तार और नमाज के औकात में किसी भी किस्म की बिजली कटौती ना हो और पानी व सफाई के निज़ाम की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इनकी जानिब से उठाए गए तमाम मसाइल का वज़ीर अज़हरुद्दीन ने मुस्बित जवाब देते हुए रमज़ान मुबारक के दौरान बेहतरीन इंतज़ामात करने का मुकम्मल तयक़ुन दिलाया।
मिर्जा रहमत बेग। चेयरमैन साहब, आपके ज़रिए मैं हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि आने वाला महीना माह रमज़ान का है और उसमें हुकूमत की तरफ से जो इंतज़ामात किए जाते हैं बल्दी बरक़ी आबरसानी के, उस ताल्लुक़ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इस ऐवान में मैं वो इंतज़ामात के ताल्लुक़ से कुछ बात करना चाहता हूँ सर। चेयरमैन साहब, जैसा कि GHMC की तरफ से जो इंतज़ामात होते हैं मसाजिद के पास, जो 2 टाइम गार्बेज का जो लिफ्टिंग करते हैं, तो उसके लिए एडिशनल टिप्पर व्हीकल्स लगाते हैं, उसके साथ ही साथ लेबर्स भी लगाते हैं। तो मैं यही चाह रहा हूँ सर कि इस साल भी अच्छे से अच्छा GHMC के तरफ से इंतज़ामात हो और ख़ास तौर पर मसाजिद के पास जो रोशनी का जो इंतज़ाम किया जाता है GHMC के तरफ से, जो टेम्पररी लाइटिंग लगाई जाती है, क्योंकि तराबियों के बाद और सुबह में फजर के टाइम पर रोशनी होना बेहद ज़रूरी है। तो इस ताल्लुक़ से मैं आपके ज़रिए से हुकूमत को बताना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ सर, GHMC के तरफ से हमेशा जो एक महीने के लिए एडिशनल टिप्पर गाड़ी लगाकर, लेबर लगाकर जो डिब्रीज को उठाया जाता है, तो वो भी करने से बहुत बेहतर रहेगा। उसके साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे जमात के सदर नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हुकूमत फोसी के लेबर को जो एडिशनल 1 महीने के लिए हुकूमत की तरफ से, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के तरफ से 1 महीने के लिए एडिशनल लेबर को लगाया जाता है, अब के साल भी लगाने से बहुत बेहतर रहता। और आखिरी में मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ साहब, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमारे रोज़े के टाइम हो या तराबियों के टाइम हो या सहर के टाइम हो, ये टाइम पर पावर कट नहीं होना सर, LC नहीं देना। तो मैं आपके ज़रिए चेयरमैन साहब, मैं हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा हर साल जो नुमाइंदगी करती है रमज़ान के इंतज़ामात के ताल्लुक़ से, तो ये पूरे तेलंगाना में जो जितने मसाजिद है उस ताल्लुक़ से नुमाइंदगी कर चुकी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो मैं आपके ज़रिए यही कहना चाहता हूँ सर, अच्छे से अच्छे इंतज़ामात करने से बेहतर रहेगा रमज़ान में। Honorable Minister. Noted both the honourable members' request, and will forward the first member's request to the concerned minister. The second request, it falls into my ministry. So whatever you have, Rahmat Beg Sahab has said, the honourable member will definitely take care of it and will make sure that everything falls in place. BRS के रुकने खानम साहब कौंसल PS रेड्डी ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि साबिक सरपंचेस के जो फंड्स वाजिबुल अदा हैं, इन्हें फौरी तौर पर जारी किया जाए ताकि जो काम अंजाम दिए गए हैं इनके बिल्स की इजराई अमल में लाई जा सके। उन्होंने कानून साज कौंसिल में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो अब जबकि रियासत में पंचायती इंतखाबात भी हो चुके हैं, ऐसे में नए सरपंचों के लिए भी अवामी कामों की तकमील के लिए फंड्स जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो नए मुंतखब सरपंचों की विलेज पंचायत अकाउंट्स में भी 5 लाख रुपए की इजराई अमल में लाएं ताकि गाँव और देहातों की सतह पर अवामी ज़रूरियात के कामों की अंजाम दही को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों की राह में फंड्स की कमी को हायल होने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। हुकूमत को फौरी फंड्स की इजराई अमल में लाने की ज़रूरत है। అధ్యక్ష, మాజీ సర్పంచ్ల యొక్క బిల్లుల గురించి అధ్యక్ష, ఈ మధ్యకాలంలో అందరూ కూడా రోడ్డు మీద వచ్చి ఆందోళన చేయడం కానీ, మొన్న అసెంబ్లీ ముట్టడి చేయడం కానీ, చాలామంది కూడా కొద్దిమంది ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది. చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు అధ్యక్ష. ప్రభుత్వం పెద్ద మనసు చేసుకొని వారి యొక్క బిల్లులు కూడా తొందరగా ఒక నిర్ణయం తీసుకొని విడుదల చేయాలని మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ
అదేవిధంగా అధ్యక్ష, మొన్న కొత్తగా ఎన్నికైనటువంటి సర్పంచ్లకి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్ననే ఒక సభలో చెప్పడం జరిగింది. చిన్న గ్రామ పంచాయతీలకు 5 లక్షలు, పెద్ద గ్రామ పంచాయతీలకు 10 లక్షలు, 12,700 గ్రామ పంచాయతీలు అన్నిటికి కూడా ఖచ్చితంగా స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ద్వారా నిధులు విడుదల చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. మీ ద్వారా నా యొక్క ముఖ్యమంత్రి కానీ ప్రభుత్వం కానీ విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, కొత్తగా మొన్ననే సర్పంచ్లు వాళ్ళు ఎన్నికయ్యారు కాబట్టి వారి దగ్గర వాళ్ళ గ్రామ పంచాయతీలో కూడా ఎక్కడ కూడా నిధులు లేవు, 1 రూపాయి కూడా లేవు కాబట్టి స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ కాకుండా నేరుగా గ్రామ పంచాయతీ అకౌంట్లో 5 లక్షలు కానీ 10 లక్షలు కానీ విడుదల చేస్తే వారు ఇమీడియట్లీ వారి పారిశుద్ధ్యానికి కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఇమీడియట్లీ ఏదైతే ట్రాక్టర్ రిపేర్లకు కానీ వాటికి కానీ ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి దయచేసి ప్రభుత్వము స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ కాకుండా డైరెక్ట్గా గ్రామ పంచాయతీల అకౌంట్లకు విడుదల చేయాలని మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. शहर में ऑटो यूनियनों की जानिब से इनके मुतालिबात की यकसुई का मुतालबा करते हुए असेंबली के घेराव की कोशिश की गई, जिसे पुलिस की जानिब से नाकाम बना दिया गया। ऑटो यूनियनों के कायदीन जब बशीरबाग तक पहुंचे, हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई क्योंकि पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। ऑटो ड्राइवर्स ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से आरटीसी बसों में खवातीन के लिए मुफ्त सफ़र की स्कीम महालक्ष्मी शुरू की गई है। इसके नतीजे में ऑटो ड्राइवर्स के लिए रोजी कमाना मुश्किल हो गया है। ऑटो ड्राइवर्स ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि इंतखाबात से कबल जो वादे किए गए थे इन्हें पूरा किया जाए। खास तौर पर इन ड्राइवर्स ने मुतालिबा किया कि हादिसाती इंश्योरेंस की फौरी तौर पर तजदीद करवाई जाए और हुकूमत ऑटो ड्राइवर्स के लिए भी माशी इमदाद फराहम करे। अपने मुतालिबात की तायद में नारेबाजी करते हुए ऑटो ड्राइवर्स यूनियनों के अरकान और कायदीन असेंबली की सिमत पेशरफ्त करना चाहते थे, तहम पुलिस ने इन्हें बशीरबाग चौराहे पर रोक दिया। साइबराबाद पुलिस ने चाइनीज नायलॉन मांझे के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त इंतबाह जारी करते हुए इसे अवाम और परिंदों के लिए जानलेवा करार दिया है। पुलिस के मुताबिक पतंगबाजी खुशी का जरिया जरूर है, लेकिन शीशे से लपेट ये खतरनाक डोर सड़कों पर चलने वालों और 2 पहिए सवारियों के लिए मौत का फंदा बन रहा है, जिसके बायस इसकी फरोख्त, जखीरा और इस्तेमाल को गैर कानूनी जुर्म करार दिया गया है और रवां साल अब तक 53 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। साइबराबाद के हसास इलाकों मियाँपुर, माधापुर, कुकटपल्ली और गच्चीबौली में खुसूसी निगरानी की जा रही है, जबकि मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनने और एतदाल रफ्तार इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। पुलिस ने वाज़ेह किया कि नायलॉन मांझे परिंदों की हलाकत और आवारा जानवरों के जख्मी होने का सबब भी बन रही है, इसीलिए अवाम से अपील की गई है कि सिर्फ कॉटन धागे का इस्तेमाल करें ताकि आसमान रंगीन रहे और सड़कें महफूज रहें। तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद के सह्याद्री पहाड़ों में वाक़े कबायली देवी जंगूबाई की सालाना यात्रा कबायली सकाफत, अकीदत और फितरत से गहरे रिश्ते की एक मुनफरिद मिसाल बनकर एक बार फिर लाखों अकीदतमंदों को अपनी जानिब खींच लाई है। हमारे नुमाइंदे खजीर अहमद याफी के मुताबिक ये यात्रा हर साल पुशियाम के महीने में फज्र के वक्त हिलाल चांद का नजर आते ही शुरू होती है और 1 माह तक जारी रहती है, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले कोण, प्रधान और कोलाम कबाइल के अफराद बड़ी तादाद में शरीक होते हैं। कोमरम भीम आसिफाबाद के केरा मेरी मंडल में महाराज गौड़ा के करीब एक गार में वाक़े एक मुक़द्दस मुकाम पर हजारों साल पुरानी रवायात के मुताबिक पूजा की जाती है, जहां यात्रा का आगाज और इसकी निगरानी 8 गोत्रों के कटुदास पुजारी अंजाम देते हैं। इस दौरान अकीदतमंद सख्त मजहबी ज़ाब्तों की पाबंदी करते हुए नंगे पांव सफ़र, शराब से मुकम्मल परहेज, ज़मीन पर क़याम के उसूलों पर अमल करते हैं, जबकि प्रसादी की तैयारी भी रवायत के मुताबिक धयान के चावल, गुड़, दाल और तिल के तेल से की जाती है। रात के वक्त इज्तिमाई इबादत, रवायती गीत और देवी की मदा सराई और इस रूहानी इज्तिमा को उरूज पर पहुंचा देती है और यूं जंगजूबाई यात्रा महज एक मेला नहीं बल्कि कबायली तहजीब के इनके अकायद और फितरत से अटूट रिश्ते की जिंदा अलामत बनकर नस्ल दर नस्ल अपनी शनाख्त को महफूज रखे हुए हैं।
जिले आदिलाबाद के बेला मंडल मरकज में शिवाजी चौक के करीब वाक़े इंटर स्टेट हाईवे पर मिशन भागीरथा के पीने के पानी की पाइपलाइन मुनहदम होने से बड़ी मिकदार में पानी सड़क पर बह रहा है, जिसके बायस आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई है। सड़क पर पानी जमा होने से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं और गड्ढों का अंदाजा ना होने के सबब किसी भी वक्त हादसा पेश आने का खदशा बढ़ गया है। मुकामी देहातियों ने इल्जाम आयद किया है कि कीमती पीने का पानी बेदरीग ज़ाया हो रहा है, जबकि मुतालिका हुकाम इस संगीन मसले पर लापरवाही बरत रहे हैं। अवाम ने आला हुकाम से फौरी मदाखलत करते हुए पाइपलाइन की मरम्मत, पानी के ज़ाया को रोकने और ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने का मुतालिबा किया है ताकि अवाम को राहत मिल सके। कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के दायरे इख्तियार में महाराजगंज इलाके में एक कत्ल की कोशिश के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जख्मी शेख अमित अलमारूफ पवन को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहां इसका इलाज जारी है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हमले की वजह गैर कानूनी ताल्लुकात बताई जा रही है। पुलिस ने इस वाक़े में मुलविस मुलजिम रवि को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मजीद तफसीलात तफ्तीश के बाद सामने आएंगी। बेहंगम और तेज रफ्तार ड्राइविंग की वजह से हादिसात और इंसानी जानों के इतलाफ का सिलसिला जारी है। हनमकुंडा जिले में पेश आए एक हादसे में एक बाइक सवार नौजवान गैस सिलेंडर ले जाने वाली गाड़ी के नीचे आकर हलाक हो गया। कहा गया है कि हनमकुंडा जिले के कमलापुर इलाके में एक बाइक सवार तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था और इसने एलपीजी सिलेंडर ले जाने वाली लारी को ओवरटेक करने की कोशिश की। इस दौरान इसकी गाड़ी फिसलकर लारी के नीचे आ गई और बाइक सवार बरसरे मौके हलाक हो गया। इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो मंजरेआम पर आया है, जो तेजी के साथ वायरल हो गया। इसमें देखा जा सकता है कि शायद बाइक सवार ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था और इसकी गाड़ी फिसल गई, जिसके नतीजे में वो लारी के नीचे आकर बरसरे मौका हलाक हो गया। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। 13 रजब यौम विलादत अमीरुल मोमिनीन हजरत अली। हैदराबाद में डबिलपुरा से मौला अली पहाड़ तक सहरा मुबारक के साथ तारीखी जुलूस, शहर में रूहानी माहौल। रियासत में बल्दियाती इंतखाबात के लिए माहौल साजगार। 117 बल्दियात के लिए 11 जनवरी को या इसके बाद एलामिया की इजराई का इम्कान। तेलंगाना में इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के हॉल टिकट्स वालिदीन के व्हाट्सएप पर भेजे जाएं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का फैसला, डाउनलोड लिंक के जरिए हॉल टिकट की फराहमी। माह रमजान से कबल बल्दी बरखी व आबरसानी मसाइल पर MLC रहमत बेग कादरी का कौंसल में मुतालिबा। मसाजिद के अतराफ रोजाना सफाई, बिजली कटौती ना करने, पानी व सफाई की बिला रुकावट फराहमी पर जोर। हाइडा ने गंडीपेट के करीब 12 एकड़ सरकारी अराजी से नाजायज कब्जे बर्खास्त किए। अराजी की कीमत 1200 करोड़ रुपए होने का इम्कान। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत।
21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुजदलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करे। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।